have a common root, right? Common root. So obviously the key point for this question is the common root, right? The roots are common, and we know that if two equations are given and the roots are common, so the best way to solve this is subtract this. We are getting b minus c into x plus c a times c minus b is equal to 0, or x is equal to a, because b is not equal to c. If b is equal to c, both the roots will be common, right? So x is equal to a, right? Put the value x is equal to a in the given equation, we are getting a square plus bx ba plus ca is equal to 0. A is common out. A plus b plus c is equal to 0. Since a is not equal to 0, राइट, ए जीरो हो जाने हैं तो माइनस बी माइनस सी भी जीरो हो जाने हैं, राइट? तो ए जीरो होगा तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी जीरो इन दैट वे. सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. Is it okay, Drew? Is it okay? Okay, yeah, sure. So now your theoretical part था, you have done with the theoretical part ना. आज इस पर बेस क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल. बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस होंगे. सो आईआईटी के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो, एंड ऑल द डिफरेंट, राइट, कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे. सो बी केयरफुल. अल्फा बीटा are the roots of quadratic equation x square minus p times x plus 1 minus c is equal to 0. Then prove that alpha plus 1 into beta plus 1 is equals to 1 minus c, and find value of alpha square plus 2 alpha plus 1 upon alpha square plus 2 alpha plus c plus beta square plus 2 beta plus 1 upon beta square plus 2 beta plus c. Find value of this. Alpha and beta are the roots of given equation x square minus p Good times morning, x sir. plus 1.
Very good, Samarth. Could you send me the solution, please? Yes, Samarth. Vraj, very good. Very good. First one is very simple, right? Go for second one. Try to use first one, then you'll get to know, okay, this is very simple question. Sir, एंड ये ब्यूटी बहुत अच्छे से देखनी आपको जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पर बेस होते हैं क्वेश्चंस एंड यू विल नो कि हाउ टू सॉल्व दिस. मैं स्टार्ट एवरीवन. See, for the first one I can see x square minus p x plus 1 plus c is equal to 0, right? Or x square minus px plus c minus p is equal to 0. Alpha and beta are roots, so alpha plus beta is equal to p, and alpha into beta is c minus p, right? C minus p. What I have to find? Alpha plus 1, beta plus 1, value of alpha plus 1 and beta plus 1. So we know that this is nothing but alpha plus beta, alpha into beta and plus 1. Alpha into beta is c minus p, alpha plus beta is p, and this is 1. So this is coming as c plus 1. I guess alpha plus beta was sir, question was x square alpha plus minus p 1, x beta plus 1 plus minus 1. c. Sir, question was minus c. Minus Okay, C. this was minus c. So no worry. This is minus, so this is minus, so minus c plus 1. So this will be 1 minus c, right? What you are getting. Okay. But ध्यान देना, एग्जैक्टली मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन जो गिवन है मेरे पास, राइट, दिस इज द इक्वेशन. ये इक्वेशन को द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, राइट? And we have to find equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. Let this is capital A, let this is capital B. So alpha is equal to A minus 1 or beta is equal to B minus 1, or we can put the value of alpha on this. So we are getting A minus 1, the whole square minus A minus 1 plus 1 minus C is equal to 0. And I'm getting a square minus 2a plus 1 minus ba minus c is equal to 0.
or this is a square minus a p plus 2 plus 1 minus c is equal to 0. In place of capital A I can write x, याद होगा लास्ट क्लास में काफी सारे मैंने इसी पर बेस क्वेश्चन कराए थे, इज इक्वल टू 0. एंड इसके रूट्स है कैपिटल A कैपिटल B, मीन्स इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी. बात समझ में आई, राइट? इसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन से कर दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन. प्लीज नोट डाउन. और इसी फंडामेंटल को मैं यूज करूंगा, राइट सान्या, वेरी गुड. इसी फंडामेंटल को मैं यूज करूंगा, राइट. रज, यू वांट टू से समथिंग? योर वॉइस इज नॉट कमिंग. नो सर. रज, नहीं सर, कुछ नहीं पूछना. you can write beta, your voice is not coming. Okay. Sir. राइट. सो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दें. यस अनय. सर. यस अनय. सर हमने b माइनस 1 किधर ये इक्वेशन में यूज नहीं किया सर. So we have result alpha plus 1 and this is result we have, right? Alpha plus 1 and beta plus 1 is equal to 1 minus c, right? So what I can do from this, I can write this as alpha plus 1 whole square, just solving first one or second one, only one, right? Upon this will be alpha plus 1 whole square plus c minus 1, right? Similarly, beta plus 1 whole square upon this is beta plus 1 whole square minus plus of c minus 1. And what is the value of c minus 1? Minus of alpha plus beta, and this, right? So this is alpha plus 1 the whole square upon alpha plus 1 square minus alpha plus 1 into beta plus 1 plus again beta plus 1 whole square upon beta plus 1 whole square minus alpha plus 1 beta plus 1, right? Alpha plus 1 common out, alpha plus 1 upon alpha plus 1 means alpha plus beta, beta plus 1 upon beta minus alpha, right? Taking alpha minus beta as common, to alpha plus 1 minus beta plus 1, alpha minus beta is 1. One of the simplest question if you are applying this simple result, right? One of the simplest thing. राइट. तो क्वेश्चन के कैलकुलेशन में मत फंसना. हो सकता है वो कैलकुलेशन ही इसलिए बना हुआ हो. यू हैव टू थिंक कि हाउ टू गो फॉर दिस, राइट? क्वेश्चन कैसे करने हैं उसमें जानने हैं, राइट? नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें. इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 सभी लोगों को 3 मिनट का टाइम है. अपने अपने बुकलेट निकाल लें, बुकलेट ले लें जो भी है. अगर बुकलेट किसी के पास नहीं हो, सॉफ्ट कॉपी भी यूज कर सकते हो. हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी सबसे अच्छा है, राइट?
डन, स्टार्ट कर रहा हूं. राइट नाउ एक्सरसाइज 1A, फर्स्ट 11 क्वेश्चन. आपके पास 2 मिनट का टाइम है. सब लोग गो थ्रू करो. जो भी डाउट है राइट डाउन इन चैट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन 1A? पहले ये तो लिख दें यस और नो में. कितने लोगों ने 1A कंप्लीट कर लिया है? राइट डाउन. इफ नॉट, राइट डाउन नो. ओके देन एवरीवन राइट डाउन क्वेश्चन नंबर्स. मैं अभी जो दे रहा हूं वो लिखना शुरू करें. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 1A, 4, 5, 8, 13, 16, and 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 क्वेश्चन, जितना फास्ट हो सके. राइट. एक्सरसाइज 1 है ना सर? ओके थैंक यू सर. क्वेश्चन 7 भी इंक्लूड कर लेना. ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 7. मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. टेक योर टाइम. एक एक करके फिर मैं सॉल्व करता हूं.
Very good, Dhruv, Tanishq, very good. Should I start? Okay, okay. Take your time. Take your time.
sec theta, what we are getting here is 1 by 2 and 1 by 4, but we know that sec theta is always greater than 1, right? अब ये आने का साफ मतलब है कि ये दोनों रूट्स नहीं है, मतलब मुझे बोलना चाहिए नो रियल रूट्स। इसे एक्सट्रीनियस रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स की यहाँ पर बात हो रही है। रूट्स का मतलब है तो हमारे पास कोई भी रूट नहीं आ रहे हैं, एक्सट्रीनियस रूट की बात यहाँ हो रही है, राइट। फिफ्थ, if the quadratic ax square plus 2a plus b into x plus a plus 2b plus c is equal to 0 are imaginary, roots are imaginary, then imaginary तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स के बारे में बात करनी है, राइट। बात सिंपल सी है, मुझे इसके discriminant d1 and the discriminant of this is given as d2, right? We have to find d1 and d1 is given d1 less than 0 and we have to comment on d2, right, after getting the value from there, right? So d1 is nothing but b square minus 4ac. Simply I have to go for this and write 4, I can take out 4, a square plus b square plus 2ab minus a square minus 2ab minus ac less than 0. A square cancel, b square less than ac, right? Or this b square minus ac less than 0. This is 2b the whole square minus 4ac less than 0. That's d2 less than 0. Complex roots, right? Question 7. What 7 is saying? If the roots of the equation 6x square minus 7x plus k is equal to 0, right? Then find possible values of k if roots are rational. What was the condition for roots rational? Roots rational means d Perfect. must be perfect square, right? d को perfect square होना चाहिए discriminant. And what is the discriminant? b square minus 4ac is equal to some I square, right? And like definitely with the question I can see at k is equal to 1 and k is equal to 2, right? You're getting to direct value, right, where you'll get the solution for this, right? At 1 this will be 25, at 2 this will be 1, and both the way you are getting this. आप ये भी बोल सकते हो कि सर राइट मुझे दिख रहा है कि के रैशनल है और उसे अगर निकालना होता तो आप ये भी बोल सकते थे 7 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के, 7 प्लस आई एंड 7 माइनस आई इज इक्वल टू 24 के। इससे भी मैं चाहूँ तो प्रोडक्ट करके सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी जा रही है, तो यहाँ पर ही अगर कर पाते तो अधिक अच्छा था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Question number 8. A square plus b square into x square minus twice of bc plus ad into x plus c square plus d square is equal to 0. Right? So I can write this as a square x square minus 2cbc x plus c square plus b square x square minus 2, यहाँ भी रखता हूँ ना, b square x square, a square x square minus 2 ad into x plus d square is equal to 0. You can see this bc
bx minus c the whole square, ax minus d the whole square is equal to 0, means b by c is equal to c by b is equal to d by a is equal to x. Okay, AC minus BD, and yes, D is equal to 0 is a perfect thing. Same thing I am doing in different way. मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये perfect square बन रहे हैं, तो दो perfect square का sum is equal to 0, right? So obviously I'm getting this, right? Question number 8. 8 के बाद question number 13. X square plus p plus 2 into x plus p plus 2 into x plus 2p is equal to 0. The roots of this equation are distinct integer when ये x plus x square plus px plus 2 x plus p is equal to 0. So x plus 2 x plus p is equal to 0. Right? Factorize हो रहा है. सबसे सिंपल बात है, फैक्टराइज हो रहा है. एंड व्हाट वी रिक्वायर्ड, द रूट्स ऑफ दिस आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, राइट? सो ऑब्वियसली इधर दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2. x इज इक्वल टू -2 होने पर p इज इक्वल टू 2, राइट? तो डिस्टिंक्ट इंटीजर होने के लिए p इज नॉट इक्वल टू 2, राइट? दो फैक्टर तो हो गया, बट ये ख्याल रखना है कि अगर x की वैल्यू -2 मैंने ले ली है तो अकॉर्डिंगली p will be different. So p is not equal to 2 at that time. So except 2, you can take any values. Yes, Shikhar. Yes, Shikhar. अभी क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? You are not audible again. Just a minute. Give me a time. See, the equation is given. You have to find 2 alpha minus 35 into 2 beta minus 35 the whole cube, right? What I'm saying, let's suppose 2 alpha minus 35 is equal to capital A. Alpha is equal to A plus 35 by 2, right? Put the value of this A plus 35 is A को मैं XC लिख दे रहा हूं अभी, minus 35 x plus 35 by 2 plus 2 is equal to 0. ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल आ गया मेरे पास, राइट? 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225 माइनस 35x बाई 2, ऐसा करो ना, 2 यहां कर दिया, ये उड़ा देता हूं, 2 ये भी उड़ा देता हूं, 35x प्लस 1225 प्लस 4 is equal to 0, right? x square plus 75x plus 4 is equal to 0. कुछ ऐसा आ रहा है, right? And इसके रूट्स क्या है मेरे? 2 अल्फा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35, यही दोनों है रूट्स. एंड मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द रूट. क्या है वो? 4. उसका क्या चाहिए? क्यूब. आ गया 64. दैट्स इट. अरे अब तो यूज करो, ट्रांसफॉर्मेशन यूज तो करोगे. इन्हीं सब के लिए तो ये सीखा है हम लोगों ने. इज इट ओके एवरीवन? यस सर. यस सर. ना कितना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन. मैं क्यों निकालूं? वो मुझे जहां ड्रैग कर रहा हूं वहां क्यों जा रहा हूं कहानी लेके? Austin, is it okay? Yes sir. Pratham,
प्रथम तिवारी, क्या आप 2 डिवाइस पे हैं? प्रथम, लाइफ टफ कर दिया। सर हाँ, सर ट्रांसफॉर्मेशन लेने का सोचने के लिए मैंने ऐसा भी किया था बट वर्क नहीं कर रहा था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 35/2, तो फिर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया सर, तो 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा प्लस 35। तो 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू आ जाती है बीटा से, और 2 बीटा नहीं बेटा, माइनस 30। इक्वेशन फॉर्म कर दो ना। क्वेश्चन नंबर 21, किसी के डाउट्स हैं? जिनके भी डाउट्स हैं वो लिखेंगे 21, क्वेश्चन 21, उसके बाद 23, 27। टाइम भी अधिक लगा हो तो इट्स द सेम थिंग। (27), 24, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होने का क्या मतलब होगा? कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, a = b = c = 0। दिस इज कॉल्ड एड आइडेंटिटी। तीनों को मैं 0 करूंगा। इसका a के कारण जो आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू 1 2 आ रही है, राइट। दूसरे में लैम्डा की वैल्यू 2 3 आ रही है। तीसरे में लैम्डा की वैल्यू ±2 आ रही है। तीनों में जो कॉमन है वही आंसर होगा, लैम्डा = 2। सिंपल क्वेश्चन। 3 to the power x minus 1 plus 3 to the power 1 minus x is equal to 2, 27। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये कैसे पॉसिबल है? जब ये दोनों ही 1 हो जाए। 1 कब होगा? जब x is equal to 1 होगा, मतलब 0 होगा, दोनों का पावर तभी होगा, राइट। सर मैंने t + 1/t = 2 लेके पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया। क्यों सॉल्व किया? t + 1/t = 2 कब आएगा? t = 1 पर आएगा। हाँ, जरूरत क्या पड़ गई? यस। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, राइट डाउन एवरीवन। इस बार स्पीड और बढ़ना चाहिए। यस सर आप 17 एक बार ही मतलब मेरे मेथड से ट्राई कर सकते हैं क्या? करेंगे बेटा, अलग से कर लेंगे ना। ठीक है। 29, 30, 31 एंड 33। दैट्स इट। इस बार केवल 4 क्वेश्चन रखा हूं, बट ये ख्याल रहे ये 4 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मैं 6 मिनट आपको दिया हूं। ओके प्रियांशु पॉल, आर यू देयर? प्रियांशु पॉल, Sure. right, and put the value of, cancel out 3x minus a is equal to 0, x is equal to a by 3. Put the value a² by 9 minus 33, 11a by 3 plus a is equal to 0। एक a is equal to 0 आ गया और दूसरा अपने आप की वैल्यू। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये सब। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 52, 55, एंड 59। ये 3 क्वेश्चन बस, मैक्सिमम 7 मिनट टाइम। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कोशिश करना, ये सिंपल है, थोड़े फास्ट हो सकते हैं। बुकलेट आपको 1A 1B सब होमवर्क लिख लेंगे, 1A 1B। नेक्स्ट संडे मैं टेस्ट ले रहा हूँ इसका, राइट? ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा आप लोगों का क्वाड्रेटिक का ना, कंप्लीट क्वाड्रेटिक। हाँ सर। ओके तो Yes, एकदम sir. तैयार रहें इसके लिए। नेक्स्ट संडे को ही मैं इसका पूरा टेस्ट रखूंगा। यस सर। मैं कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, वो रह गया थोड़ा करना पूरा। टू ए तक आपको कंप्लीट कर लेने हैं, राइट? और अगर 2A तक हो जा रहा है तो 2B पर भी चले जाएंगे। ओके एवरीवन, 2A तक तो चाहिए ही चाहिए सब ना। और अगर 2A तक कंप्लीट हो जा रहा है देन गो फॉर 2B एंड 2C। दैट्स इट, यहां तक तो कंप्लीट करने हैं आपको। ओके डन एवरीवन, हो गया? डन? यस सर। किसी के डाउट आ रहे हैं? 52, 55, 59 में कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क। 259। क्या दिक्कत आ रही 59 में बेटा? प्लीज प्लीज पूछें। What you are not getting in 59? Yes आदित्य। सर 59 दूसरे मेथड से कर सकते हैं क्या कि पहला डेरिवेटिव मेथड पहले बता दो। सर पहला मेथड नॉर्मल रेंज निकालने वाला मेथड से y हाँ, से तो कैसे इक्वेट निकालते करके हैं? सर y से इक्वेट कर दिया उसको और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर सकते हैं फिर कोई और तरीके से।
x1 x2 क्या क्वेश्चन है? 55 59 बोले ना? हाँ सर 59। क्या है क्वेश्चन बोलो? सर 40 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है सर मिनिमम वैल्यू निकालनी। मिनिमम वैल्यू। पहले डाउट किसका था? किसी ने डाउट पूछा था? किसका नहीं हुआ? ले चुप्पी मार दिया यार। ये सब क्वेश्चन, इसको y ले लिया, क्वाड्रेटिक बनाया, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, y की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को लिख डाला जो हमने क्या रखा था, y इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40। इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। इस y को उधर ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40 माइनस y इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गेट दिस, हो गया भाई। क्या आप बोल रहे थे? नॉर्मल एबनॉर्मल मेथड? सर दूसरा मेथड पूछा था, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको पुट करके मिनिमम वैल्यू निकाल। वेरी गुड। सर मेरे को लगा आप कुछ मेरे को लगा मुझे तब मारूंगा इसलिए डर गया। जो